Good morning, everyone. So far in probability, we did learn about conditional probability, and based on that, we had exercise 13.1 from NCERT textbook. As the name was there, conditional, so there was some restriction on the different events from the same sample space. Now we are going to start talking about the independent events, which is the reverse case of that indeed. How come? As the name suggests, independent event. So happening or non-happening of one event is not depending on the happening or non-happening of the other event. For example, if for a job interview, two persons A and B apply, so they are two different entity. So they have their own qualifications, so they have their own chances of being get selected. So A is not depending on B, B is not depending on A. Their selection are independent to each other. So they will be referred to as the independent events. Now, theoretically, when we talk, two events are said to be independent if P of A by B is equal to P of A. Let us understand this. Why is it so? Via this notation, what we did learn, we are calculating nothing but the probability of A only in this case. But B was given to me. So the happening of B was affecting A, but up if they are independent, it is already mentioned. So B ka hona ya nahi hona, it hardly matter. So that will takes the simple form of P of A. So P of A by B will become P of A only. Similarly, P of B by A पे अब affect कुछ भी नहीं है, तो that will become P of B. Now, observe that we have a simple formula of say P of A by B. This is P of A intersection B over P of B. Now, if A and B are independent, so this will become P of A only. This is P of A only. When I cross multiply, what will happen? P of A into P of B will be P of A intersection B. और यहां से देखना शुरू करें तो आ गई ये वाली कंडीशन, P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So that is the condition to check whether the given two events are independent or not. In fact, if you are given with the three events A, B, and C, then we say that they are mutually independent if all these four conditions holds true. That is, A in P of A intersection B should be P of A into P of B. Similarly, A and C should be independent. B and C should be mutually independent. And altogether, P of A intersection B intersection C should be PA into PB into P of C. Which means not only first three conditions are essential, all four should happen simultaneously, then only we will be having all these three events are independent. Generally, in board examination, three events are not considered like this to verify. That will be taken as a common sense problem. We'll talk about that very soon. So
Whenever P of A intersection B is P of A into P of B, A and B are independent, and conversely, vice versa is also true. If A and B are independent, then this condition will hold true. In fact, there is a very important result जिसे हम throughout use करने वाले हैं. Evens E and B are F are independent. ये आपको अगर given है, then E dash and F will be also independent. E dash मतलब not E, complement. E dash and F dash are also independent. What does that mean? Okay, इसका proof जो है that is in our syllabus. So 2 marker board में 2-3 बार आया हुआ है last 10 years में. So let me consider say the proof of A part. So that B part proof clearly पहले ही बता देता हूं in your homework. आप चेक करिए आपको क्या given है. E and F, they are independent. If they are independent, by definition, now this is known to us. So एक तरह से ये चीज मुझे given हो गई. We need to show. क्या show करना है? E dash and F are independent. That is, logically सोचिए, ये दोनों कब इंडिपेंडेंट होंगे? अगर इनका इंटरसेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के इक्वल लिखा जा सके. सो दैट इज नाउ टू शो. अगर ये मैंने शो कर दिया कि ये ट्रू है, सो क्लियरली E dash and F will be independent. So please make sure कि स्टार्टिंग में इतना कंसेप्ट क्लियर है आपको. अब हम कंसीडर करते हैं LHS. What is my LHS? E dash intersection F. पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है. क्लास 11th में आपने इसका एक फॉर्मूला किया हुआ है. किसी को कुछ याद है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास 11th से? This is P of F minus P of E intersection F. ये 11th क्लास का फॉर्मूला है. ये डे 1 में मैंने जब रिवाइज करवाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ 10th 11th, देन ऑल्सो आई डिड कंसिडर. नाउ सिंस दिस इज P of E into P of F, तो इसकी वैल्यू ये गिवन है. क्या हो गया? P of E into P of F. अब तो सिंपल है, दोनों में से P of F कॉमन. In bracket we left with 1 minus P of E. And what is 1 minus P of E? P of E dash, which is nothing but RHS. So अगर ये हो गया, we simply justify that E dash and F will be also independent. I hope this is clear to all of you. चैट बॉक्स में एक बार मैं देख रहा हूं और आपकी अटेंडेंस भी मेरी हो जाएगी. ओके, उपासना, ईशा, वंशिका, आर्यन वर्मा,
उत्सव, स्वराज, धनंजय, शिखर, हर्ष शर्मा, आदित्य निर्वाल, आकांक्षा, देविशा, देवांश, ओके, प्रतीक्षा, आर्जव, रजनीश, यशराज, तन्मय. Exactly half of the class तो clear absent. I don't know उन्हें कौन पढ़ा रहा है और ऐसा कौन इतना अच्छा पढ़ा रहा है कि मुझे लग रहा है मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है. Okay, let's consider one example. A die is thrown. A die is thrown means we have the 6 cases in my sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6. If E is the event, number appearing is the multiple of 3. तो multiple of 3 का मतलब क्या हो गया भाई? मुझे पता है मेरा सैंपल स्पेस तो ये है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो उसमें से एक इवेंट ये है और F क्या है? नंबर अपीयरिंग इज इवन मींस 2, 4, 6. फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट. तो जब भी आपको इंडिपेंडेंसी चेक करनी है, वी हैव अ फॉर्मूला. तो उसके लिए पहले मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखना होगा, विच इज क्लियरली 6. कंसिडर P of E intersection F. One case out of possible 6 cases. What is P of E into P of F? Check it out. P of E, 2 cases out of 6. P of F, 3 cases out of 6. 1/3 into 1/2, ये भी आ गया 1/6. So हमने क्या ऑब्जर्व कर लिया? P of E intersection F is P of E into P of F. अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, that simply imply E and F are independent. इवन अब जो मैं फर्दर एक दो क्वेश्चन से देखता हूं, हो सकता है वहां पर भी ये कंडीशन ट्रू आए, बट दैट इज नॉट टू बी जनरलाइज्ड कि भाई ऐसा तो हमेशा ही होगा. देयर आर द केसेस विच वी विल आल्सो कंसीडर कि E एंड F इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो वो कंडीशन वायलेट होगी. दैट विल फॉलो वेरी सून. Please check out this question. An unbiased die is thrown twice. So twice वाले में तो वो 36 cases आ जाएंगे. Let A be the event odd on the first throw. अब यहां थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए. odd on the first throw का मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 आ गया, और फिर odd होना चाहिए पहले थ्रो पर. odd on the first throw. तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है. तो अब आपको ये सारे केसेस लिखने की जरूरत नहीं है. लॉजिकली दिस कैन बी हैंडल्ड. बाकी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो क्लियरली ए कंटेन्स 18 एलिमेंट्स. चेक कर लीजिए, ये 18 केसेस आएंगे. फिर बी की बात करते हैं. बी क्या है? ऑड ऑन द सेकंड थ्रो. ऑड अब सेकंड पे आ रहा है, तो
1 1, फिर 1 आ जाए ऑड सेकंड के ऊपर, और फिर ऑड आ जाए सेकंड के ऊपर, तो यहां पर 3 वाले सारे आ जाएंगे, और फिर फाइनली करते करते ऑड चाहिए, तो यहाँ 1 5 2 5 एंड सो ऑन, odd on the second. So here also 18 cases आ गए. अब what is A intersection B stands for? Anyone? कितने cases आएंगे A intersection B में? Okay, 9, Rajneesh is saying. So A intersection B is pretty obvious. In both cases odd आना चाहिए, तो of course उसमें क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 1 5, ऐसे ही 3 1 3 3 3 5 और 5 1 5 3 5 5. सो चलो ये मैंने सारे लिख ही लिए. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज 9. अब आप चेक कर लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला आपको चेक करना है फॉर इंडिपेंडेंसी. सो व्हाट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? 9 cases out of possible 36 cases. What is P of A into P of B? 18 cases out of 36. P of B भी 18 out of 36, which is clearly 1/4. इसका मतलब P of A intersection B आ गया P of A into P of B. So this imply A and B are independent. ये फिर बता चुका हूं, हमेशा नहीं होता. यहां बाई चांस इस एग्जांपल में फिर से दे आर कमिंग टू बी इंडिपेंडेंट. Let's begin with one another problem. E1 and E2 are two events such that P of E1 is 0.3, P of E1 union E2 is 0.4 and P of E2 is X. अब कह रहे हैं find X. First part, E1 and E2 are mutually exclusive. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको पता है इनका इंटरसेक्शन विल बी फाई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज 0. तो अब आपके पास फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, E1 यूनियन E2 विल बिकम P of E1 प्लस P of P2 माइनस P of E1 इंटरसेक्शन E2. ये टर्म तो 0 हो गई, और रिमेनिंग टर्म्स एंड वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन टू यू. सब्स्टिट्यूट कर दिया और यू हैव योर रिक्वायर्ड आंसर. अब सेकंड पार्ट में क्या कह दिया है, E1 एंड E2 दे आर इंडिपेंडेंट. ये डिफरेंट केस हो गया ऑफ कोर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से. तो अब अगर ये इंडिपेंडेंट है तो P of E1 इंटरसेक्शन E2 क्या बन गया, बाय डेफिनेशन P of E1 into P of
E2। बस अब आप फार्मूला कंसीडर कर लीजिए, ये वाला, विच इज वेरी सिंपल नाउ। और ये जो लास्ट टर्म है, ये स्प्लिट होकर क्या बन गया इस रूल से, P of E1 प्लस P of E2 माइनस E1 into P of E2। सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यूज, और अब आप ऑब्जर्व करेंगे आपको सारी वैल्यूज पता है, एवरीथिंग इज गिवन टू मी, दैट्स इट। So that 0.1 is equal to 0.7x or x is equal to 1 over 7, your required answer। देख लीजिए इसे ध्यान से। Based on the previous question concept directly in your homework। इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स यूजुअली बोर्ड में आती रही हैं, जो अब स्टार्ट कर रहा हूं। चेक इट आउट। Ramesh appears for an interview for two posts A and B, for which selection is independent। ये दे भी दिया है आपको। The probability of his selection for post A is 1/6 and for post B it's 1/7। इतना सा पढ़ते ही at least one can write नॉन सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब क्या कह रहे हैं फर्दर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज सेलेक्टेड फॉर at least one post। Selected for at least one post। तो चेक करिए, एक पोस्ट पे कह रहे हैं कम से कम सेलेक्ट हो, मींस ए पर हो जाए, बी पे नहीं हो उसका सिलेक्शन, और वाइस वर्सा। इज इट कंप्लीट और इज समथिंग इज मिसिंग और इनकम्प्लीट, क्या लगता है? Just read your message, screen is not visible। It's not visible now। हेलो, विजिबल है? ठीक है। और ऑडियो ओके? अच्छा चलिए ठीक है। तो अब आप चेक करिए, जो मैंने केसेस बताए हैं यहां पर एक्चुअल में एक लॉजिक आता है, और वो लॉजिक हो सकता है 6th क्लास का स्टूडेंट भी आराम से यहां आपको बता दे। भाई कम से कम एक पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन हो, ऑब्वियसली हो सकता है उसका दोनों के लिए सिलेक्शन हो जाए,
तो कई बार क्या होता है, शायद समझे बिना अगर सॉल्व करते हैं तो ये टर्म भूल जाते हैं। तो प्लीज रिमेंबर टू कंसिडर दिस ऑल्सो। अब आप लॉजिकली सोचिए, ये मैंने आपको एक रिजल्ट अभी प्रूव करवाया था, ये वाला प्रूविंग वाला कौन सा था, ये कि if E and F are independent, E dash and F they will be independent, E dash and F dash they will be independent। तो अब इसकी एप्लीकेशन देखिए यहां पर किस तरह से आ रही है। If A and B are independent, so is A and B dash। तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आई कैन राइट लाइक दिस, सेकेंड टर्म ये हो जाएगी, और थर्ड टर्म क्योंकि इंडिपेंडेंट है ए और बी, ये होगा। बस इसके बाद तो आपको ऊपर से वैल्यूज को ही रखना है। आई एम जस्ट रीडिंग एंड कॉपिंग द वैल्यूज। सो दैट दिस इज 6 प्लस 5 प्लस 1 ओवर 42, 13/42 ये रिक्वायर्ड आंसर। नहीं सॉरी, 12। वो तो फिर आगे लोएस्ट फॉर्म में भी आप लेकर आएंगे इसे। योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इसे सॉल्व करने का कोई और मेथड माइंड में आ रहा है, ऑल्टरनेटिव कोई और अप्रोच दिमाग में आ रही हो? 2/7? अरे हाँ ठीक है, 2/7 आ रही है। यस, एनी ऑल्टरनेटिव वे थिंकिंग प्रोसेस? सोचिए ध्यान से, कह रही है क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड फॉर एट लीस्ट वन पोस्ट, कि कम से कम एक पोस्ट में हो जाए, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सिलेक्शन। मतलब ए में भी ना हो और बी में भी ना हो, और ये हो गया 1 - क्योंकि ए और बी तो इंडिपेंडेंट है। तो व्हाट इज पी ऑफ ए डैश? 5/6, 6/7। सो 1 - 5/7, which is 2/7। So check it out. Which method you would prefer depends on you. किस तरह से आप इसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं। Otherwise, both are absolutely correct. I would refer and obviously go for the second alternative approach. बट कई बार अगर आप ना भी सोच पाए और डायरेक्ट जैसे पहले बताया है वैसे भी कर दें, दैट इज फाइन। यहां पर वो फाइन है, बट कुछ सिचुएशन आएंगी जहां पर आपको ऑल्टरनेटिव ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। बेस्ड ऑन दिस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड इन योर होमवर्क। थर्ड एंड फोर्थ में, फोर्थ आपका इस तरह का हम कर चुके हैं, चेक करना इंडिपेंडेंट या नॉन इंडिपेंडेंट। थर्ड का एक बार सोचिए ध्यान से। वैसे आपको ये बता दूं, थर्ड क्वेश्चन देखने में तो आपका 4 लाइंस में आ रहा है, बट इसका आंसर सिंगल लाइन में लॉजिकली है। कुछ करना ही नहीं है, थिंक अबाउट इट, प्लीज रीड इट।
A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. So always remember to highlight the keywords. Without replacement hai aur 3 oranges are selected. If all 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. So find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad. Twelve are good, 3 are bad, will be approved for the sale. So you have to think logically. क्या होगा आंसर इसका? पहला मैंने सेलेक्ट करा, गुड आया. तो बेसिक आइडिया इज प्रोबेबिलिटी आपको किस तरह से करनी है कि तीनों आपके गुड आने चाहिए और फिर वो विदाउट रिप्लेसमेंट है. ये इंडिपेंडेंट हो गए, कोई भी आपके हाथ में आ सकता है. क्वेश्चन में कहीं भी ये टर्म यूज नहीं हुई है, इंडिपेंडेंट है. हेयर कम्स द रोल ऑफ कॉमन सेंस. बस अब पहला गुड हो, 12 गुड है आउट ऑफ 15. दूसरा गुड हो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो बस 11/14. फिर अगला भी गुड हो 10/13. योर रिक्वायर्ड आंसर. Fifth and sixth both are very simple, a part of your homework. सेवंथ एंड एट्थ अगेन वेरी सिंपल. आप चेक करिए, सेवंथ वाला तो जहां था ना एक्स निकालने के हमने दो पार्ट करे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, तो एग्जैक्टली सिमिलर है. और एट्थ फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट है, अगेन डायरेक्टली इन योर होमवर्क. नाइन्थ एंड टेंथ, अब यहां हो सकता है कुछ लॉजिक लगाना रहे, तो एक बार नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं. टेंथ में फिर आपके लिए होमवर्क में रख रहा हूं. If A and B are two events such that P of A is 1/4, P of B is half, P of A intersection B is 1/8, you need to find, क्या निकालना है? P of not A and not B. So I think लैंग्वेज से ये तो क्लियर है नोटेशन, नॉट ए एंड नॉट बी में. क्या करेंगे? यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ आई कैन राइट दिस. ये डी मॉर्गन्स लॉ यूज करा है क्लास 11th का, सेट थ्योरी. दिस इज 1 minus P of A union B, which is 1 minus P of A plus P of B minus P of A intersection B. नोट केयरफुली, आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन में ऊपर गिवन थी. 1/4 प्लस 1/2 minus 1/8. Solve it, you have your answer. Is there any other approach striking to your mind? सोचिए ध्यान से.
लॉजिक और एक सिंपल कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं, और मेथड की। ऑब्जर्व दैट इन दिस क्वेश्चन P of A into P of B करके देखें। दिस इज 1/8 और this is given as 1/8. If P of A intersection B is equal to this, इसका मतलब A, B जो हैं they are independent. See, in most of the word problems जो आपकी होती है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, वहां तो इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि नहीं भी लिखा तब भी ये इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जजमेंट करना आसान नहीं है, तो वो आपको फॉर्मूला से वेरीफाई कर लिया मैंने। आई नोटिस दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट हैं, तो ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये चीज जो मुझे निकालनी थी, this will become simply p of a dash into p of b dash, which will be यहां से p of a dash 3/4 and p of b dash 1/2। ये भी ऑब्वियस है, फिर 3/8 ही आ रहा होगा। रिक्वायर्ड आंसर, अगेन मेथड ऑफ चॉइस इज yours। बस लास्ट मिनट। Question for your homework again. And this question is already discussed with you. आप सोच के देखना, यहां तक हमारा हो चुका है। So I'll consider till 12th. तो होमवर्क में आपके पास सिंपली NCERT एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक रहेंगे। If you have any doubt, you can ask. Well, your pre-boards will be starting from 4th of January. बाकी ऑफिशियल अभी थोड़ा हो जाएगा, बट स्टिल यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। 80 मार्क्स का ही यह पूरा 3 घंटे का होगा, वो 40-40 का 2 स्लॉट में नहीं होगा। तो पूरा 80 मार्क का 3 आवर्स के हिसाब से रहेगा। सो प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ इफ नो डाउट। चलिए, ओके, अब थैंक यू। ओके, टेक केयर। चलिए, प्रणव। प्रणव, I have to remove you.